Hello student, welcome to our YouTube channel Go Ahead. আজি ଆମେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ? ଯେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ହେବ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ which makes complete sense is called a sentence। ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯିଏକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ କରି ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? There are four kinds of sentence. There are four kinds of sentence. What is? One is declarative sentence. Declarative. Second is interrogative. Third is imperative. And fourth is exclamatory. ठीक ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ that makes a statement or assertion। ଆର ମିନିଂ କ'ଣ? ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୁଝିଲ? ଯେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେବା? ସପୋଜ୍ ହମ୍ପଟି ଡମ୍ପଟି ସେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ୱାଲ୍। ଯେ ହମ୍ପଟି ଡମ୍ପଟିକୁ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଅର୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେ ୟାକୁ ଯିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। What is interrogative sentence? Interrogative sentence is a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। ଯେ interrogative sentence କାହାକୁ କହିବା ନା ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରେ ବା ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ interrogative sentence କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ Where do you live? or ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ନେଇପାରିବା What is your name? କ'ଣ? What is your name? Right? Question mark। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ that express a command or entity is called an imperative sentence। What is the meaning? ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେ କିଛି ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ମୂଳକ କିଛି ଯଦି ଭାବନା ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବି କହିଦେଉଛି। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଦେଶ ଓ ଅନୁରୋଧମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ
जदि कौन से आदेश काठू पाइबा बा किसी अनुरोध करवा तेज आम इम्पेरेटिव सेंटेंस को यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बोली जानी परिबा। अर्थात सपोज एग्जांपल बी क्वाइट सावधान रुह। अर्थात आर मीनिंग हेउछि जे वी गेट सम कमांड्स हमें किसी आदेश पाउछंती। ठीक अच्छे। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम काहू कहबा ना से कहिला जदि या गोटे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिए। ओके दृढ़ भावना जदि गोटे सेंटेंस दृढ़ भावना प्रकाश करे ताहाको आमे कहिबा जे विस्मय सूचक वाक्य। एग्जांपल नबा हाउ कोल्ड द नाइट इज। कौन जे आज किपरि ठंडा रात्रि अटे। और ओह वी ओन द मैच आम एनदर एग्जांपल नहीं पारिया। ओह वी ओन द मैच आमे मैच टी जीति गलु। ठीक अच्छे। यहीपरि भाव में सेंटेंस रो प्रकार भेद होता है बा आमे सेंटेंस को ए प्रकार व्यवहार करि थाउ। नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन और प्रेडिकेट कौन? सब्जेक्ट रा मीनिंग हेउची ताको ओडिया रे आमे कहि परिबा सब्जेक्ट अर्थ कर्ता बा जे करे। ठीक अछि। तो आमे डिटेल डिस्कस करिबा व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक ए सेंटेंस आमे जेतेबेले गोटे सेंटेंस तैयारी करू वी नेम सम पर्सन और थिंग आमे किछि व्यक्ति बा वस्तु को सूचाई थाउ एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग एवं से व्यक्ति बा वस्तु विषय किछि ना किछि कहि थाउ। ओके इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट and we must say or predicate something about that subject। जे इन अदर अन्य अर्थ रे कहिले आमे किछि सब्जेक्ट नहीं थाउ कि जहा ऊपर कहबा पई एवं किछि प्रेडिकेट जहा को कहबा जहा को नहीं थाउ से सब्जेक्ट एवं ता ऊपर किछि कहबा पई आमे प्रेडिकेट व्यवहार करि थाउ। ठीक अछि। तो तार एग्जांपल नाबा देखो कहि परिबा आमे सपोज Rama is eating his food on the table। Okay, तो Ram is a person, it shows a person, so Ram is here the subject and eating food on the table is predicate। Right। what is subject? The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence। Right। कौन कहला जदि सेंटेंस रो जो पार्ट गोटे पर्सन बा थिंग को सूचाउ थाए ताको आमे सब्जेक्ट कहबा। ठीक अछि। The part which tells something about the subject, this called the predicate of the sentence। आ जेउ जिनसटी बा जेउ वाक्यटी जेउ शब्द गुड़िक सब्जेक्ट विषय किछि कहंती ताको आमे प्रेडिकेट रे रखिबा। ठीक अछि। तो सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। सबु बेले सब्जेक्ट कौन हुए ना प्रथम रे व्यवहृत होई थाए बट ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। किंतु बेले बेले हुए याकू प्रेडिकेट पछरे ही रखा जाय थाए। आमे उदाहरण नहीं परिबा हियर कम्स द बॉस। राइट। एठारे द बॉस हैला सब्जेक्ट बट इट इज यूज्ड आफ्टर प्रेडिकेट। इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। राइट। जे एठी कहिला जे
जे इम्पेरेटिव सेंटेंस बा आदेश और अनुरोधमूलक वाक्य रे आमर सब्जेक्ट उह्य हो रही था लेफ्ट आउट थाए ठीक अच्छे एग्जांपल सिट डाउन इट मीन्स इट से यू सिट डाउन ठीक अच्छे जे सिट डाउन कहबार अर्थ ये जे जड़े जदि सिट डाउन कहे अर्थात से जन को ही कहे बा सी अन्य जन को कहे अन्य मान कहे सिट डाउन बसी पड़ अर्थात यू सिट डाउन तुम्हें माने बसी पड़ ठीक अच्छे यहपरी तुम्हें यार क्वेश्चन आंसर कर ठीक अच्छे नेक्स्ट आम आसवा दि फेयर्स एंड दि क्लज दि फेयर्स एंड दि क्लज examine the group of words in a corner it makes sense but not complete sense such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase आम फेयर्स क्या कहबा फेयर्स अर्थ खंड वाक्य ओडिया रे ठीक अच्छे जे फेयर्स आम क्या कहबा जदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिसिकी सेंस तैयारी करिवे किंतु ताहा जदि कंप्लीट सेंस न हुए ताहाको आमे फेयर्स कहबा हैला एग्जांपल कोन द सन राइजेस इन द ईस्ट सन राइजेस ऑन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअंती ऑन द मॉर्निंग इफ वी आर एडिंग ऑन द मॉर्निंग इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस हैला सकाळे सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअंती बट इन हियर द सन राइजेस इन द ईस्ट ओनली सो इट इज ए फेयर्स next we are going to talking about clauses right examine the group of words in blood in the following sentence he has a chain of gold and he has a chain which made up of gold we recognize the first group of words as a phrase right he सेठी कौन कहला ना ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड से गोटे कौन सुनार चेन रखी अर्थात सेकेंड मीनिंग सेकेंड एग्जांपल कहले जे से गोटे सुनार चेन रखी जहाँकि सी गोटे चेन रखी जहाँकि सुनारे तैयारी ओके द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फेयर्स ऑफ गोल्ड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट जे से फेयर्स गोल्ड को छाड़ी दे द्वितीय सेंटेंस रे से सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट अच्छी आ गोटे प्रेडिकेट अच्छी सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज जदि गोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कौन करते ना गोटे सेंटेंस रो पार्ट होइतिबे एवं गोटे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट थिले ताको हमें क्लॉज कहि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट आमे आसीबा पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके बा आमे स्पीच को केते भाग रे विभक्त करिसंती व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच words are divided into different kinds or classes is called parts of speech जे वर्ड गुड़िक डिफरेंट काइंड रे व्यवहार बा क्लासेस रे व्यवहार हेबा को आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहू अकॉर्डिंग टू देयर यूज दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर ओके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 टाइप्स रे व्यवहार डिवाइड करछंती वन इज नाउन सेकंड इज एडजेक्टिव थर्ड इज प्रोनाउन फोर्थ इज वर्ब फिफ्थ इज एडवर्ब सिक्स प्रीपोजिशन 7 कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन राइट वी आर नाउ गोइंग टू टॉकिंग समथिंग अबाउट ए नाउन ओके A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Right? आमे noun बा विशेष्य काहाकु कहिबा जे noun हेउछि गोटिए वर्ड बा शब्द जे कि गोटिए पर्सन प्लेस और थिंग रे यूज हुए बा गोटे व्यक्ति गोटे स्थान ओ वस्तु को सूचाई थाए
एग्जाम्पल नहीं पारबा अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर जड़े भल राजा थिले। एठी अकबर इज ए नाउन। और आम सेकेंड एग्जाम्पल नहीं पारबा कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। एठे कोलकाता इज ए प्लेस, सो इट इंडिकेट्स प्लेस, सो कोलकाता इज ए नाउन। ओके, ठीक ठीक अच्छे। देन आम आसवा एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आम क्या कहवा? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जे एडजेक्टिव गोटे वर्ड जे कि किछि ऐड करे, किछि कथा ऐड करे बा मीनिंग ऐड करे कहा उपरे ना नाउन। गोटे नाउन उपरे किछि मीनिंग ऐड करले ताहाको हमें एडजेक्टिव कहवा। सपोज एग्जांपल ही इज ए बॉय, इट इज ए सेंटेंस और इट इज ए बॉय इज ए नाउन। बट इफ आई टेल ही इज ए ब्रेव बॉय, इट इंडिकेट्स इट इज ए ब्रेव मीनिंग्स से जड़े साहसी बालक। ठीक अच्छे, तो से जड़े बालक किंतु से जड़े साहसी बालक। एठी साहसी बा ब्रेव ता विषय किछि अधिक कहला, से बॉय विषय अधिक किछि कहला, तेणु यहाँ को आम एडजेक्टिव कहवा जी कि किछि ऐड करे मीनिंग। ठीक अच्छे। देन वी गोइंग टू ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। राइट, ये कौन बुझिल जे प्रोनाउन क्या कहवा सर्वनाम। हाँ ठीक अच्छे, जे से जदि गोटे नाउन परिवर्ते व्यवहार हुए ताको आम एक प्रोनाउन कहवा। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जेठी से कहला जॉन अनुपस्थित बा उपस्थित नहीं कारण से असुस्थ अच्छी। यार अर्थ बिकॉज ही इज इल, एठी ही प्रोनाउन हिसाब से व्यवहृत होइछि। जदि आम कहीपरि थांते जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, इट टेक्स सो लॉन्ग टाइम, सो वी यूज इट शॉर्टली टू राइट ही। ओके, जे आम आपको शॉर्ट व्यवहार करपरि ना ही लेखि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, कारण से असुस्थ। ठीक अच्छे, यहीपरि आम जे कर्ता को बारंबार व्यवहार न करी ताको शॉर्ट रे व्यवहार करने को प्रोनाउन कह जाए। ठीक अच्छे। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट और स्टेट। जे वर्ब आम क्या कहवा क्रिया ए गोटे वर्ड जे कि गोटे एक्शन एक्सप्रेस कर किसी कार्य दर्शाऊँ। ओके, सपोज द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजन। ओके, जे गोटे गर्ल गोटे रोट हियर रोट लेखुची लेखिची। ओके, लेखिबा गाइबा पीबा खाइबा ऑल टाइप्स ऑफ वर्किंग एक्शन। राइट, इट इज योर वर्ब। ओके, कोलकाता इज ए बिग सिटी। हाँ, iron and copper are useful metals. Okay, here all the action is called the verb. Okay, then we are going to an adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. जे adverb कौन ना जे कि किसी ऐड करे इन व्हिच वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जे कि किसी वर्ब रो मीनिंग रे किसी ऐड करि थाए, किसी मीनिंग ऐड करि थाए। ओके, फॉर एग्जांपल वी वर्क द सॉन्ग क्विकली। मु किसी कार्य बहुत शीघ्र करदेली क्विकली। ओके, इफ यू आर टेलिंग इन simple we worked the sum quick, but here quickly means शीघ्र रो शीघ्र। ठीक अच्छे। then we going to a preposition. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. ओके, जे आम एठी कौन कहला ये प्रिपोजिशन आम क्या कहवा
ये प्रिपोजिशन हूँ गोटे शब्द जे कि नाउन शो करे ओके गोटे नाउन प्रोनाउन सहित मिसिकी शो करे गोटे पर्सन आउ थिंग बा पर्सन व्यक्ति और वस्तुर से किपरि नाउन प्रोनाउन सहित स्टैंड करी बा तांको सहित किपरि संपर्क बांधि थाए ताहा शो करिथाए। देख देयर इज ए काउ इन द गार्डन ये गोटे गाई बगीचा भितर अच्छी देयर इज ए काउ इन द गार्डन ओके हियर इन इज द प्रीपोजिशन ओके then we going to a conjunction is a word used to join words or sentence okay what is conjunction they tell conjunction is a word to join the words जे कि वर्ड्स को जॉइन करिबारे सहायता करे ताको हमें कंजक्शन कहिबा हियर राम एंड हरि आर टू कजन्स राम इज ए कजन एंड हरि इज ए कजन they mix together we tell Rama and Hari are two cousins Rama and Hari are cousins okay 2 and 2 make 4 2 and 2 make 4 अर्थात 2 सहित 2 ऐड कले ता 4 होई थाए here and plus but there are some words to join the words so it is the conjunctions okay next an interjection is a word express some sudden feelings right interjection हम काह कहबा जे कि गोटे सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करे ओके हुरा वी हैव ऑन द गेम ओह वी हैव आम गेम टी जीति गलु ठीक अच्छे इट इज द ब्रीफली ये सांख्यिक भाव में व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज फ्रेज एंड क्लॉज बुझागला नेक्स्ट क्लास रे आर डिटेल आपन को गोटे गोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच रो गोटे गोटे पार्ट बुझा जीवो थैंक यू फॉर वाचिंग।